اب میں گزارش کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریاتی اساس کی زندہ تصویر جناب قمر زمان کائرہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب قمر زمان کائرہ صاحب. جی بھٹو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین اور میرے جالو ساتھیوں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں نجم الدین خان صاحب کو، ان کے تمام ساتھیوں کو، ان کی تمام تنظیموں کو، ان کے تمام پارلیمانی ساتھیوں کو، آج ایک ایک کارکن کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے آج ثابت کر دیا کہ پشاور اور خیبر پختونخوا پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا اور گڑھ ہے اور انشاءاللہ رہے گا. اور انشاءاللہ آنے والے جو چند دنوں میں اگر الیکشن ہوئے لوکل باڈیز کے تو وہ بھی ایک فیصلہ کن مرحلہ ہوگا. پشاور میں بھی پیپلز پارٹی جیتے گی اور باقی پورے خیبر پختونخوا میں بھی انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے. میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا دن پیپلز پارٹی کی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل دن ہے. آج کے دن پیپلز پارٹی کا قیام ہوا تھا، پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی. اور یہ وہ جماعت نہیں ہے جو سرکار کے گملوں میں اگائی گئی. یہ وہ جماعت نہیں ہے جو صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی. یہ وہ جماعت نہیں ہے جو یو ٹرن لے کے ایک سے ایک جھوٹا وعدہ کر کے بنائی گئی. نہیں میرے ساتھیوں، یہ شہید بھٹو اور ان کے ساتھیوں کا ایک طویل مغز خوری کے بعد، ایک طویل جدوجہد کے بعد، ایک بڑی فکری جدوجہد کے بعد اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی تھی. اس لیے کہ 1967 میں اس وقت پاکستان کے اوپر ایک آمر مسلط تھا. آمریت کے تحت لوگوں کی آواز دبائی جا رہی تھی. نہ قلم آزاد تھا، نہ زبان آزاد تھی، نہ سیاسی کارکن کو سیاست کرنے کا اختیار تھا. اس وقت چند خاندان بلکہ 17 خاندان پاکستان کی دولت پہ قابض تھے. اس وقت جاگیرداروں کے ہاتھوں اس ملک کا دہقان مجبور ہوا پڑا تھا. اور جو انڈسٹریلسٹ تھا اس نے مزدور کی زندگی کو اجیرن بنا دیا تھا. جب چاہتا تھا کسی کو مزدوری دیتا تھا اور جب چاہتا تھا اس کو دھکا دے دیتا تھا. کوئی تحفظ نہیں تھا اور پاکستان ان حالات کا شکار تھا. اور میرے قائد نے، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، اس وقت جب پارٹی کی بنیاد رکھی تو انہوں نے پاکستان کے نوجوان کو، پاکستان کے دہقان کو، پاکستان کے مزدور کو، اس ملک کے تمام طبقات کو ان کے حقوق کی یاد دہانی کرائی. یقین دلایا کہ میں وہ انقلاب لاؤں گا جو پاکستان کے ایک ایک فرد کو، جو پاکستان کی ہر طبقے کو انشاءاللہ تعالی اس کے حقوق لا کے دے گا. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ بھٹو شہید نے بڑے بڑے جاگیرداروں کے تختے الٹ دیے. اس ملک کے اندر بڑے بڑے جاگیرداروں نے، بڑے بڑے سرمایہ داروں نے بھٹو شہید کے خلاف انہوں نے اکٹھے ہو کے کوششیں کی. لیکن تاریخ شاہد ہے کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے. بھٹو شہید نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے اس فلسفے کے تحت یہ جماعت بنائی جس میں اس ملک کے نوجوان سے یہ وعدہ کیا گیا کہ ہم تجھے روزگار دیں گے، ہم تجھے تشخص دیں گے. اس ملک کے اندر کوئی وڈیرا اور کوئی عام نہیں ہوگا، کوئی چکمی اور کوئی چودھری نہیں ہوگا، کوئی سردار اور کوئی اس کا کمین نہیں ہوگا، بلکہ
निसार खोड़ा साहब तशरीफ लाए हैं और हमारे बड़े पॉपुलर पटेल साहब आए हैं। और आपको याद है पटेल साहब बड़ी कमाल की बातें करते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि भुट्टो शहीद ने इस जमात की बुनियाद रखते हुए जो वादे किए वो इस मुल्क के हारी के साथ, इस मुल्क के किसान के साथ, इस मुल्क की अक़लियतों के साथ कि ये मुल्क जितना किसी अमीर और जागीरदार का है उतना ही हारी और मजदूर का है। ये मुल्क जितना किसी एक मजहब के मानने वाले का है दूसरे मजहब के मानने वाले का भी उतना ही है। ये किसी एक की जागीर नहीं। और फिर भुट्टो शहीद ने खाली वादे नहीं किए थे, उन्होंने इसकी अमली ताबीर की थी। ये नाहल हमसे पूछते हैं कि भुट्टो शहीद ने कहा था कि रोटी कपड़ा मकान दूंगा, किसको दिया? और भाई, और जब रोजगार मिला तो रोटी मिली ना, जब रोजगार मिला तो घर मिले ना। शहीद भुट्टो के दौर में मुल्क के अंदर चंद हजार लोग बेरोजगार रह गए थे और आज इस मुल्क के अंदर फिर वही सूरत हाल है। आज फिर पाकिस्तान उन्हीं शिकंजों के अंदर है। आज मुल्क के ऊपर फिर आमरीयत है। आज मुल्क के अंदर फिर इस मुल्क का नौजवान बेरोजगार है। जब से ये हुकूमत आई है 2 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हो गए हैं। आज फिर अमीर की दौलत में इजाफा हो रहा है, गरीब की गुर्बत में इजाफा हो रहा है। और कौन सा निजाम दे रहे हो? इमरान खान, तुम कहते हो मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा। अरे खुदा के बंदे, मदीने में झूठ बोलना जुर्म था और तेरे लिए सच बोलना जुर्म है, इसलिए कि तू तो यू टर्न खान है, तेरी तो पॉलिसी यू टर्न है। तू तो हर वादा करके झूठ बोलता है। और आज तू पाकिस्तान के अंदर, खान साहब कहते थे कि मैं पाकिस्तान के अंदर आला कानून बनाऊंगा। आज पार्लिमान बेवकार है। आज इस मुल्क के ऊपर चंद लोगों का कब्जा है। हर बंदे की पगड़ी उछालना इनका कमाल है। और अगर तुम समझते हो कि ये फिस्ताई निजाम ताकत के जोर पे नैब के जरिए पाकिस्तान के नौजवानों को, इस मुल्क के आम आदमी को तुम रोक सकोगे, तो ये मुमकिन नहीं है। मेरे जालो, आज पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के मसाइल का सामना करने के लिए वही फलसफा लेके उठना है। ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन आज भुट्टो शहीद के कदमों में खड़े होके, आज बीबी शहीद के विजन के साथ लेके यही एक वाहिद रास्ता होगा कि हम पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल सके। जब पाकिस्तान में महंगाई होती है तो कहते हैं आलमी हालात ऐसे हैं कि हम मजबूर हैं। अरे इमरान खान, ये कौन सी आलमी हालात हैं कि इस मुल्क के अमीरों की दौलत बढ़ रही है और गरीबों की गुर्बत बढ़ रही है? ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है कि हम मान लें कि सिर्फ आलमी हालात ऐसे हैं? अरे तेल के हालात तो चलो जो सही, अरे चीनी के हालात तो वो नहीं है ना। चीनी तो बाहर से नहीं मंगवा रहे हो, वो तो पाकिस्तान के अंदर आप कहते हो हमारे पास स्टॉक मौजूद है। आज अगर तुम्हारी बात में जरा भी सच होता तो हम मान लेते कि हाँ, पाकिस्तान को आलमी हालात की बदौलत महंगाई का सामना है। लेकिन इस वक्त इस नाअहल हुकूमत ने, इस निकम्मी हुकूमत ने और इस निखट्टुओं के टोले ने पाकिस्तान को जिस हालत में खड़ा कर दिया, आज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी फिर कंप्रोमाइज्ड है और आज पाकिस्तान IMF के शिकंजे में है। हमें ये सोचना है, हमें ये अहद करना है, हम अपने चेयरमैन के साथ मिलके उनकी ताकत बढ़ा के हम इस मुल्क के लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि ना इस मुल्क के अंदर यहाँ का कोई अजर चलेगा, ना कोई अमर चलेगा, और ना हम किसी IMF की, ना किसी वर्ल्ड बैंक की, ना आलमी इस्तेमार की डिक्टेशन मानेंगे, बल्कि हम भुट्टो शहीद के फलसफे पे चलेंगे। और आज मेरे साथियों, पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी अरूज पे है। आज फिर सो कॉल्ड मजहबी जमातें
इकट्ठ कर रही है। आज रियासत उनके आगे सरेंडर कर रही है। और ये हम नहीं कह रहे, इस मुल्क का वजीर इत्तलात कहता है कि पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारे दहशतगर्दी का सामना करने को तैयार नहीं है। याद रखो, भुट्टो शहीद ने 1967 में कहा था आज के दिन कि अगर इस मुल्क के अंदर सियासत के रास्ते रोके गए तो फिर दहशतगर्दी होगी, इंतहा पसंदी होगी। और आज 54 साल के बाद हम उन बीजों का, हम उन पौधों का फल खा रहे हैं जो हम तारीख में लगाते रहे। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी ये तारीखी जिम्मेदारी निभानी है। जिस तरह भुट्टो शहीद इंतहा पसंदी के सामने खड़े हुए थे, जिस तरह वो आलमी इस्तेमार के सामने खड़े हुए थे, बीबी शहीद खड़ी हुई थी, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी है जो इस मुल्क को मजहबी इंतहा पसंदी से बचा सकती है। ये जो मजहब के नाम पे ठेकेदारी करते हैं, अरे इस मुल्क में मजहब को कोई खतरा नहीं है। इस मुल्क में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को, उनकी अजमत को, उनकी हुर्मत को कोई खतरा नहीं है। ये जो डुगडुगियां बजाते हैं, बुनियादी तौर पे ये इस रियासत की ताकत के अंदर से अपना शेयर लेना चाहते हैं। इनके पास कोई मंशूर नहीं है, अवाम के मसाइल का हल नहीं है, इनके पास कोई मुआशी निजाम नहीं है। ये सिर्फ लोगों को जज्बाती करके, उनके जज्बात से खेल के और उनसे जरिए वोट लेना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी और मजहब की इकोनॉमी में से अपना शेयर लेने के लिए सारे तरद्दुद करते हैं। हम इनको मुस्तरद करते हैं। और पीपल्स पार्टी के जालो, हम सब ने पूरे पाकिस्तान में अपने रैंक्स को भी ठीक करना है, अपने पार्टी के तंजीमों को भी ठीक करना है, अपने चेयरमैन का हाथ मजबूत करना है। हमने बीबी शहीद के हौसले के साथ, हमने भुट्टो शहीद के विजन के साथ आगे बढ़ना है। और इस मुल्क में इन इस्तेमाली ताकतों को, इन IMF ज़दा, ये PTIMF की हुकूमत का खात्मा करना है। और आखिर में ये भी गुजारिश कर लूं, अभी मेरे चेयरमैन तशरीफ लाने वाले हैं, उनसे पहले कर लूं। हम चले थे, ये पीपल्स पार्टी है जिसने जब इमरान खान की हुकूमत आई, हमने पाकिस्तान की सियासी ताकतों को कहा कि इस मुल्क से इसकी जान छुड़ाओ, क्योंकि जब इमरान खान मुसल्लत हुआ है, ये मुल्क को दिन ब दिन बर्बादी की तरफ लेके जाएगा। लेकिन हमारे साथी नहीं माने। और फिर तारीख ने देखा कि हम अपने जख्म भूल के, अपने साथ होने वाली ज्यादतियां भूल के, हमने सारी सियासी जमातों को, अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा किया। बिलावल भुट्टो साहब ने अपने यहाँ कॉन्फ्रेंस करके सारी जमातों को इकट्ठा किया और PDM बनाई। जब PDM बनी, जब बिलावल भुट्टो निकला, उसके साथी निकले, इस मुल्क के जमहूर पसंद निकले, तो हुकूमत लर्जने लगी। चंद जलसे हुए थे कि हुकूमत बावली हो गई। और फिर हमारे साथियों ने कहा कि बाई इलेक्शन नहीं लड़ने, बायकॉट करना है। तो हमने उन्हें कहा, बिलावल साहब ने समझाया कि भुट्टो शहीद और बीबी शहीद का ये फैसला है, और खास तौर पे बीबी शहीद का सबक है कि सियासी मैदान खाली नहीं छोड़ने। हमने बाय इलेक्शंस लड़े, पाकिस्तान की तारीख ने देखा कि ये हुकूमत डोलने लगी। फिर सेनेट का इलेक्शन आया, हमने सेनेट का इंतखाब लड़ा। ये हमारे साथी तो कहते थे कि हम सेनेट का बायकॉट कर दें। हमने कहा कि नहीं जनाब, हमने सेनेट का बायकॉट नहीं करना, हमने सेनेट का इलेक्शन लड़ना है। चीफ मिनिस्टर से तशरीफ लाए हैं अपने साथियों के साथ, मैं उनको वेलकम करता हूं। उनको तालियां बजा के उनका इस्तकबाल कीजिए। सैयद सिफ्ते हसन साहब तशरीफ लाए हैं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के इंचार्ज, अपने साथियों से उनको भी वेलकम करता हूं। तो मैं अपनी बात खत्म करूं क्योंकि बाकी दोस्तों ने बातें करनी है। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं कि जब PDM में हम थे तो PDM थी, हुकूमत डर रही थी,
اور بہت جلدی میں ہو گئے کچھ ساتھی ہمارے. اور آج حالت یہ ہے کہ اس ملک کا ایک ایک شہری کہتا ہے کہ کب عمران خان سے ہماری جان چھڑاؤ گے. اور ہمارے دوست آنکھوں میں ہاتھوں انگلیاں منہ میں ڈالے کھڑے ہیں کہ ہم کریں تو کریں کیا, کیونکہ یہ جدوجہد کا راستہ, یہ لڑائی کا راستہ, یہ جبر کے ساتھ لڑنے کا راستہ, یہ بھٹو شہید کا راستہ ہے, یہ بی بی شہید کا راستہ ہے, یہ بلاول بھٹو کی میراث ہے, یہ اور کسی کی نہیں ہے. ہم ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں. اور میرا اپنے چیئرمین سے یہی تقاضا ہوگا کہ چیئرمین صاحب ساری قوتیں اپنا اپنا کام کریں گی. 1967 میں بھی بڑی جماعتیں تھیں, بڑے اتحاد بنے تھے, لیکن بھٹو شہید اکیلے چلے تھے اور انہوں نے سارے اتحادوں کو ایک طرف پھینکتے ہوئے اس ملک کے جابروں کو, سرمایہ داروں کو, وڈیروں کو, ملاؤں کو, سب کو پچھاڑتے ہوئے پاکستان کے اندر عوامی حاکمیت قائم کی تھی. اور وہی ہمارا راستہ ہے, وہی ہماری بقا کا راستہ ہے. اور آؤ نعرہ لگاؤ, نعرہ 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 بھٹو. وہ پیچھے والے بھی نعرہ لگاؤ, آواز آ رہی ہے نا؟ نعرہ 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 بھٹو, نعرہ 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 بلاول, نعرہ 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 بلاول. بہت شکریہ.